Hello students, you're welcome. Today, this is a poem Do Something Brother composed by M. Gopal Krishna Adiga. Dear students, before going through the poem, I will introduce you to the poet Adiga. So, M. Gopal Krishna Adiga was a well-known Kannada poet, scholar, essayist and novelist. He was having a modernism in Kannada literature. He edited a literary magazine, Sakshi. He translated the works of Henrik Ibsen and Walt Whitman into Kannada. He was awarded Sahitya Akademi Award in 1974 for his contribution in literature. His famous works are Bhavataranga, Bhumi Gita, Vardhamana and Idana. He wrote a novel, Anathi, and a collection of poems, Samagra Kavya, in 1976. Now about the poem. This is one of the most famous poems of Adiga. This poem was originally written in Kannada. It was translated from Kannada into English by A.K. Ramanujan. It is a satirical poem. It attacks on the violent tendencies of man against nature. Mother Earth is life-giving while man is life-threatening. Man exploits the earth, water and the skies to the maximum. Adiga points out that man's self-centeredness might be the end of the world. Now the poem Do Something Brother. Do something brother, keep doing something, anything, you mustn't be idle. The poet exhorts his brother saying, do something, kuch karo. Keep doing something, kuch karte raho, without stopping. Keep doing continuously something, kuch bhi. Anything, kuch bhi karo. You mustn't be idle. You must not be lazy, slothful, lethargic. आपको आलसी नहीं होना है. Keep doing, करते रहो. In this way, he satires on the destructive nature of man. व्यक्ति की विनाशात्मक जो प्रकृति है उस पर व्यंग करता है और कहता है कि कुछ भी करते रहो, विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचे बिना, recklessly, carelessly, करते रहो. Pull out this plant, and he gives a catalogue of such as destructive actions. H. Pull out this plant, इस पौधे को उखाड़ दो. Nip this little leaf, ये छोटी सी लीफ है, पत्ती है, उसको nip. Press hard between finger and thumb. अपनी फिंगर और थंब के बीच में से हार्ड प्रेस करके क्रश कर दो. क्रश दैट फ्लावर, उस फ्लावर को क्रश कर दो, कुचल दो, डिस्ट्रॉय कर दो. इस तरह से प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ मत छोड़ो. टू अदर्स, दूसरों के लिए. देयर इज ग्रास, he says there is grass, run a burning brand through it. एक जलती हुई लकड़ी इसमें घुमा दो. burn it like लंका, और लंका की तरह इसे जला दो, लंका दहन कर दो इसका भी. जिस तरह से लॉर्ड हनुमान ने लंका जलाई थी, उसी तरह से जो ग्रास है, ये नेचर है, इसे जला दो. तो इस तरह से वह कहता है कि पौधे को उखाड़ दो, पत्तियों को तोड़ दो, फ्लावर्स को क्रश कर दो, घास को जला दो. These are all destructive actions and continuously being done by man himself. So he satires on man
by giving this list of destructive works. Next it says, tiny butterflies, parrots, sparrows. There are such as tiny butterflies, titliyan, parrots, sparrows, birds. Chase them, run after them. इनको भी मत छोड़ो, उनका पीछा करो. Catch them and catch them, keep holding them. Pluck their wings and then pluck their wings. Pull out their fur and feather. और उनके पंखों को भी नोच दो, उखाड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो. That is to say, kill such as beautiful butterflies, parrots and sparrows. That is, don't leave even the birds and tiny creatures like butterflies. इनको भी मत छोड़ो, इनको भी नष्ट कर दो. There in the garden, jasmine and bananas gold. There are trees of jasmine and of bananas gold grow for the wild elephant's feet. They are generally trampled down under the feet of some wild animals, but he exhorts the man to trample down them also. गार्डन में चमेली और बनाना के जो पेड़ है उनको भी कुचल दो, उनको भी नष्ट कर दो. एंड मोर देन इट, और क्या कहता है? All over the walls, virility, master switches, each for your fingers. Close your eyes and pull out 20 of them. All over the walls you can see what? Master switches of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस मिल जाएंगे आपको. Virilities, your masculine power, each for your fingers. Long for your fingers. तुम्हारी जो मैस्कुलिन पावर है, मेनली पावर है, ये इचिंग करने लगती है. Your fingers begin to itch to destroy them. And so he again exhorts saying, close your eyes, आंखें बंद करो, and pull out 20 of them. और उनमें से 20 को पुल आउट, डिस्ट्रॉय कर दो, उखाड़ दो, तोड़ दो. डोंट लीव इवन द मास्टर स्विचेज ऑन द वॉल्स, उनको भी नष्ट कर दो. व्हाई? बिकॉज यू हैव डिस्ट्रक्टिव नेचर. नेक्स्ट ही गिव्स सम मोर एग्जांपल्स एज earth, water, the skies. They are all your gifts with golden eggs. Earth, Mother Earth, ये धरती माँ. Water, ocean, water everywhere, and the skies, आसमान. That is धरती, ये आसमान, पानी, सब कुछ. They are all your gifts with golden eggs. ये सब गीज हैं तुम्हारे लिए. इनके सोने के अंडे निकाल लो एक बार में, इनको डिस्ट्रॉय करके. स्लोली नहीं, बल्कि एक बार में, इंस्टेंटली. डू इट, गाउज देम आउट, मेक ए होल टू डिस्ट्रॉय देम, एंड स्लैश देम एंड कट देम स्ट्रेटली. In this way, he exhorts men to destroy the resources of earth, water and the skies. Next, do or die they say. लोग कहते हैं do or die, करो या मरो. गांधी जी ने दिया था नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कि करो या मरो, या तो कुछ करो या मरो. That is, destroy everything. इस करो या मरो से यहां
वह लेता है नेचर को डिस्ट्रॉय करने का. So disasters are the test for your genius galloping dance. And so these are the disasters. They are the test. वे टेस्ट हैं for your genius galloping dance. तुम्हारे जीनियस का, तुम्हारे टैलेंट का यह है डांस. गैलोपिंग, जंपिंग डांस in frenzy. So create some disasters to humanity, to this nature. प्रकृति के लिए डिजास्टर क्रिएट करो तुम्हारी जीनियस का पूरा प्रयोग करते हुए. एंड दे आर टेस्ट ऑफ योर जीनियस. तुम्हारी जो प्रतिभा है उसका ये टेस्ट है कि आप कितनी डिजास्टर्स ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट कर सकते हैं. समथिंग मस्ट क्रैश एवरी मिनट. एवरी मिनट कुछ न कुछ नष्ट होना चाहिए. You mustn't be idle. Keep doing something, anything. Do something. Every minute, something must crash. कुछ न कुछ क्रैश होना चाहिए. Why? Because you are so destructive by nature. Brother, act at once. Do something. He again says, brother, act. काम करो. Act at once. तुरंत एक्शन लो. डू समथिंग, कुछ करो. थॉट्स, वेट्स एंड मेजर्स. विचारों में तो वेट होता है, वजन होता है, एंड मेजर्स, ज्यादा इसके मेजरमेंट में मत जाओ. दैट इज डोंट थिंक. सोचो मत, विचार मत करो, एक्शन लो. एक्शन किसका? डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का. And so thoughts are all for the past. Thoughts तो past की बातें हैं. सोचना, विचार करना पुरानी बातें हैं. Don't think. So they are all for the past, for the undying ghostly treasures of the dead. Dead के जो undying ghostly treasures हैं, भूतहा खजाने हैं, ये तो इनके बारे में विचार मत. So don't think. सोचो मत. Act at once. And do something. बस कुछ करते रहो. Because you are destructive by nature. करते रहो. Next he says, there is the forest. फिर forest है. There is no scarcity of natural resources. Keep destroying everywhere. So there is the forest. फिर forest है. Cut it clean to the stems. इसे cut it clean, बिल्कुल clean काट दो, जिससे कि इसके स्टम्स रह जाए, नीचे का पार्ट ऑफ द रूट. स्लिट इट फॉर योर बंटिंग्स. फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनको भी काट दो. स्लिट, कट स्ट्रीट फॉर योर बंटिंग्स, फॉर योर डेकोरेटिव आर्टिकल्स. सजावटी चीजें बनाने के लिए लकड़ियों को काटो. यू हैव द एक्स, द सिकल, द सॉ एंड द नाइफ. You have all the tools to destroy, to cut the forests. You have the axe, कुल्हाड़ी है, the sickle है, the saw, आरी, and the knife. सब कुछ आपके पास है. Go harvest all the world, cut all the world. सारे संसार को काट दो. With a flourish of your hand, with a sweeping movement of your hand. अपना हाथ चलाते हुए सारे संसार को काट दो. You are so destructive. You are consuming all the resources of nature so recklessly, carelessly. And that's why the poet is attacking on man and his destructive nature by giving such as examples and using satire. Next he says, but you meet, there are some obstacles on your way of destruction. As he says, but you meet winter mist, walls of fog, walls that line the space between face and face, and the road that sighs and breaks in two under your eyes. A couple of mountain peaks that rear their hoods. So, but you meet, आपको मिलेगी. Winter mist, सर्दी का कोहरा.
वॉल्स ऑफ फॉग, फॉग की दीवारें, वॉल्स दैट लाइन द स्पेस, जो स्पेस में लाइन के रूप में आपको रोकेंगी, बिटवीन फेस एंड फेस, दैट इज यू विल नॉट बी एबल टू सी फेस टू फेस द अदर पीपल बिकॉज ऑफ दीज वॉल्स ऑफ फॉग। फॉग की दीवार की वजह से आप एक दूसरे को भी नहीं देख पाते, इसलिए आपको ये वॉल्स ऑफ फॉग, विंटर मिस्ट मिलेंगी जो आपका रास्ता रोकेंगी। एंड द रोड कैसा, दैट साइज आह बढ़ता है, रोड आ नहीं बढ़ता, बट इट्स ट्रैफिक एंड एक्टिविटीज एंड ब्रेक्स इन टू अंडर योर आईज, और आपकी नजरों के सामने ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। A couple of mountain peaks, पहाड़ की चोटियां, कपल दो, that rear their hoods, जो अपना हुड्स, अपना कैप, अपनी हाइट रेज किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ये आपके वर्किंग को डिस्टर्ब करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, आपके डिस्ट्रक्टिव वर्क्स को रोकेंगी। एंड लोअर अपॉन योर हेड, एंड the size, the height of these mountain peaks will be reduced upon your head, उनकी हाइट आप तक कम हो जाएगी। एंड मोर, और लाइटनिंग विंग्स फ्रॉम सायरन्स, सायरन्स की लाइटनिंग, बिजली सी चमकती हुई विंग्स, पलक झपकना, विंकिंग, आपको डरा सकती है। वेयर, दैट सिंग इन एवरी ट्री, जो एवरी ट्री में गाती है। व्हाट इज सायरन्स? इन ग्रीक माइथोलॉजी सायरन्स वर हाफ मैन एंड हाफ बर्ड्स, सच एज क्रिएचर्स वर नोन एज सायरन्स। तो इस तरह की सायरन्स पेड़ों में गाते हैं और अपनी पलकें झपकाते हैं, जिससे लाइटनिंग होती है, उनसे आप डर सकते हो। बट नाउ ही सेज, डू दे प्लंज यू इनटू एंजाइटीज एंड डिलेमास ऑफ रीजन? क्या ये आपको एंजाइटीज, वरीज में, चिंताओं में डालती हैं? एंड डिलेमास, कंफ्यूजन ऑफ रीजन, आपके एक रीजन, आपके तर्क शक्ति के डिलेमास में क्या आप पढ़ते हैं इन सब से? नो, he himself replies, खुद ही जवाब देता है इस रेटोरिक क्वेश्चन का, अलंकारिक प्रश्न का। नो नो, दिस वॉन्ट डू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू आर अ सिंपल मैन, आप तो सिंपल मैन हो, एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ, यही तुम्हारी शक्ति है। हॉर्स सेंस एंड द ब्लिंकर्स, हॉर्स सेंस, घोड़े जैसी तुम्हें समझ है, बुद्धि है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि चलता जाता है। एंड द ब्लिंकर्स, और उसकी आंखों पर ब्लिंकर्स, लेदर का स्ट्रैप होता है, वह बंधा होता है, उससे उसी साइड में दिखाई नहीं देता, फिर भी वह अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर चलता रहता है। ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें है, किस बात की? डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट भ्रष्ट कर देने की। एंड दीज आर योर फोर्ट, यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यही तुम्हारी पावर है। क्या पावर है? डिस्ट्रक्टिव नेचर, विनाशात्मक प्रकृति मानव की, यही तुम्हारी पावर है, यही फोर्ट है। इसलिए ये सभी चीजें तुम्हें एंजाइटीज और डिलेमाज में नहीं डालती हैं, इनसे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड नेक्स्ट ही सेज अगेन, ईट व्हाट कम्स टू हैंड, जो हाथ में आ जाए उसे ही खा जाओ, जो भी आए सब कुछ खाओ। क्रश व्हाट यू टच, जिसे भी टच करो उसे ही क्रश कर दो, उसे चकनाचूर कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। कट द हिंडरिंग वाइन्स, एंड हिडन वाइन्स एंड क्रीपर्स हैं, बेल हैं, उनको भी काट दो, कुछ मत छोड़ो। मदर अर्थ हरसेल्फ दो टायर्ड, ये धरती मां स्वयं यद्यपि थक गई है,
एग्जॉस्टेड। लाइज ओपन टू द स्काईज, यह भी स्काईज ऊपर है और यह ओपन नीचे लेटी हुई है। देयर इज स्टिल फ्लैश ऑन अ बोन, इसकी बोन्स में, इसकी हड्डियों में अभी भी फ्लैश है, मांस है, उसे भी निकाल लो। मैरो फॉर हंगर, और आपकी भूख मिटाने के लिए उसकी बोन्स के अंदर बोन मैरो भी बचा है, उसे भी खा जाओ, डिस्ट्रॉय कर दो, सभी इसके रिसोर्सेज को कंजम्पशन कर लो, इनका यूज कर लो रेकलेसली। सो कम कम ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर मैन। इसलिए ब्रदर आओ, बोलो मत दैट यू आर अ मैन, तुम मैन हो, ये बोलना नहीं है। एंड यू आर सच एज destructive by nature, don't forget this. Then there is the well of life, फिर ये जीवन का कुआं है, ये लाइफ है। रोप द व्हील एंड एक्सल, इसमें भी अपना व्हील पहिया और एक्सल पे रोप रस्सी डाल दो, जैसे कुएं में डालते हैं। पुल आउट ऑल द वाटर, और इस वेल ऑफ लाइफ का पूरा पानी बाहर निकाल दो। Reach the last dryness of the rock, and in this way reach the last dryness of the rock, जो वेल में, कुएं में रॉक से चट्टान है, उसकी लास्ट ड्राइनेस तक पहुंच जाओ, अर्थात पूरा जितना हो सके वह है वाटर निकाल लो। वाटर हियर रिसोर्सेज। ग्रुप विद द ग्रैपलिंग आयरन, ग्रुप सर्च, ग्रुप विद द ग्रैपलिंग आयरन, जो हुक है, ग्रैपलिंग आयरन है, उससे सब कुछ सर्च कर लो उसमें। वी फॉर विक्ट्री ब्रदर, बस यही याद रखो ब्रदर, वी फॉर विक्ट्री, कि वी विजय का भाव रखो, हमें तो विजय प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी नष्ट भ्रष्ट हो जाए, दूसरों के लिए कुछ नहीं बचे, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वार्थी बनो और डिस्ट्रॉय करते रहो। दिस इज द नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू अडेगा। ब्रेक डाउन द एटम, और एटम तक नष्ट कर दो, एटम को भी मत छोड़ो, उसको भी तोड़ दो। रीच फॉर द अल्टीमेट वर्ल्ड विद इन, और इस तरह से उसमें जो अल्टीमेट वर्ल्ड है वहां तक पहुंच जाओ। फाइंड गॉड्स ओन एरो, भगवान का खुद का जो एरो है उसे भी ढूंढ लो। एंड एम इट, और इससे निशाना बनाओ, स्ट्रेट एट द हार्ट ऑफ गॉड्स ओन एम्ब्रो वर्ल्ड, भगवान के खुद के ही बर्थ देने वाला जो संसार है उसमें ही निशाना बना दो। अर्थात जिस गॉड जो बर्थ देता है, जन्म देता है इस दुनिया को, उसी जगह, उसी एम्ब्रो वर्ल्ड में भगवान के ही तीर से निशाना कर दो, और इस तरह से उसके वर्ल्ड को, गॉड के वर्ल्ड को वहीं डिस्ट्रॉय कर दो। डू समथिंग ब्रदर, डू एनीथिंग, ब्रदर करते रहो, कुछ भी करते रहो, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, डिस्ट्रॉय करो, जितना कर सकते हो। आइडल मेन आर बर्डन्स ऑन द लैंड, आलसी लोग ये धरती पर बोझ होते हैं। डू समथिंग ब्रदर, इस बात को बार बार रिपीट करता है, डू समथिंग ब्रदर, डू समथिंग ब्रदर, कुछ करते रहो। और इसका अर्थ है डू destructive works. In this way, it is an attack on humanity. मानवता पर यह है अटैक है, यह कि व्यंग है। Do something brother. Keep doing something all the time. पूरे समय कुछ भी करते रहो। To lighten Mother Earth's load. धरती माँ के इस लोड को हल्का करने के लिए This is right. तुम्हारे लिए यही सही है। This is natural. यही तुम्हारे नेचर में है, नेचुरल है। This is the one thing needful. और यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। So keep doing. करते रहो, बस यही करते रहो। डिस्ट्रॉय करते रहो, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते रहो, आत्म केंद्रित रहो, खुद के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में चिंता मत करो। यही इस पोएम का भाव है, यही इसका मैसेज है। साथ में इस पोएम में
अडिगा फ्री वर्स का यूज करता है जिसमें कि मीटर नहीं होती, छंद नहीं होता है, उसमें राइम स्कीम नहीं होती, जो कि वॉल्ट विटमेन अमेरिकन पोएट है उसकी पोएट्री का पैटर्न है, सेम वह यहाँ यूज करता है। इस तरह से मॉडर्निज्म का वह फॉलोअर है, उसका पायनियर है, कन्नड़ लिटरेचर में है। तो इस तरह से आपने इस पोएम को ध्यान से सुना, समझा। आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कोई कमेंट है तो उसे भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।